people have this misconception कि if they invest today, tomorrow like they will become करोड़पति or something. कि आप आपके पैसे को बोल रहे हो कि भाई तू काम कर, मैं कमा के तो ला रहा हूँ बट तू काम कर. अब घर पे भी जब बोलोगे कि यार मुझे स्टॉक मार्केट में डालना है, the first reaction that comes is कि डूब जाएंगे, पैसे पूरे डूब जाएंगे. It's not gonna come back, it's not gonna make you any return. 10,000 से चालू की थी, अभी 8 साल पहले किया तो आप रफली पकड़ो 10,000 से चालू की थी तो अराउंड 8-9 lakhs किया होगा. Now, like current के केस में their portfolio is sitting at 40 lakh. तो मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा एग्जैक्टली समझ, मुझे अभी मंथली स्टार्ट करना है, तो हु विल मैनेज दैट फॉर मी? किसी ऐप के थ्रू होगा, कैसे एसआईपी होगा? बहुत इजी है. अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या घर पे हाउसवाइफ हो, मंथली आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हो, या लेट्स से आप स्टूडेंट हो कि पॉकेट मनी आती है, तो एसआईपी इज लाइक वेरी रीजनेबल ऑप्शन कि आपको एक साथ ईएमआई जैसा आपको एक साथ नहीं बल्क में पैसा देना, आप थोड़ा थोड़ा देके इन्वेस्ट कर सकते हैं. व्हाट आर द फ्यू मिथ्स अबाउट इन्वेस्टमेंट? पैसे है तो इन्वेस्ट करो. आई थिंक बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि फर्स्ट सैलरी आए तो मैं कार लूंगा, मैं चेन लूंगा, मैं आईफोन लूंगा. बट आई थिंक जब फर्स्ट सैलरी आती है, मेक एन अटेम्प्ट किया फर्स्ट अपना इन्वेस्टमेंट चालू करो. Before we begin talking about money, finance, investment, I would like to know about your journey and why you think that financial knowledge or education for women is important and how it became important for you, especially. Okay, so finance was never my forte. When I started my education, like post 12th, I did HR. Okay, graduation was full in HR, but I was when I did HR, I was like, कि HR is something that I'm not meant for. So I was like, कि maybe मैं एक try देती हूँ. I'll try to learn or take an experience in marketing and in finance. So that's when I picked up my first internship. It was in angel broking. There we did like my internship was in sales and marketing rep. Again, what it was a finance company, but like marketing, दोनों experience आ गया. Then second year में again I worked with mutual fund distributor. It was like a part time, more of a sort of an admin work, like calling, follow up and all. But again was finance में ही थी. Again जैसे graduation complete हुआ, again I did an internship. I was little confused कि marketing में जाऊँ या like finance में हूँ. I did an internship with Access Securities. Like I was thinking about MBA, but like I was like कि let's give a try, देखती हूँ कि क्या है, and then MBA में उसी में specialization करूँगी. So then Access Security में again I worked as sales and marketing rep 2 months किया, and then I did my MBA. And then MBA में I was like, finance is little overwhelming for me, नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है. And then I started working in marketing. I did my MBA in marketing, and then I worked with a German company for like 5 years in marketing. Then I got married, and then again यहाँ पर background we had like a finance office, stock market. We do stock market and mutual fund investments. So I was like कि अभी शादी के बाद क्या करूँ? Like I had two options, either to be in marketing or finance. I was like let's give a try, finance करके देखती हूँ. हो गया तो हो गया. Otherwise I have my job. So then I started finance, and I feel like कि इतना misconception है. Like finance जब भी मैं भी सुनती हूँ या मैं किसी से बात करती हूँ, everyone feels like कि बाप रे क्या बात करी. Like हम देखते हैं finance में PAT, CAGR, PEG ratio, लगता है like finance is something like investment specifically is not meant for women. ऐसा सबको बहुत बार लगता है. बट देन जब मैंने चालू की मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी, आई फील लाइक बहुत इजी है. इट्स जस्ट दैट थोड़ी चीजें पता हो तो लाइक जिनको कुछ भी नहीं पता दे कैन आल्सो इन्वेस्ट. सो आई थिंक दैट्स व्हेन इट पुश्ड मी कि नो आई कैन बी इन दिस फील्ड. एंड जैसे उसके बाद मैंने आई थिंक लास्ट ईयर आई स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम पेज. There also I started posting. So I started realizing कि people they are coming to me, they are DMing me कि यार I want to invest, कहाँ करें, like friends है, family है, sometimes strangers है. So I feel like there is finance, like investing, there's a lot of scope and there's a lot of misconceptions. So I think that just made me a little more excited कि I think I can be in that field and I can do better. Okay. As you already mentioned that finance is very intimidating, है ना? Even when we discussed about this collaboration, my first reaction was कि I have no idea about investment, money, finance, so how we're gonna have podcast on it. So tell me, why finance sounds so intimidating, so risky and complicated for people, and how you can make it easier for them, for beginners to understand finance and investment. आई थिंक जब भी मैं इन्वेस्टमेंट बोलती हूँ पीपल ओनली थिंक अबाउट स्टॉक मार्केट. और स्टॉक मार्केट बोला तो लाइक केतन पारिक का स्कैम एंड ऑल दैट कम. एंड बहुत लाइक
99.99% have this people have this misconception कि if they invest today, tomorrow like they will become crorepati or something. And because of this attitude, they start investing. Specifically बोलूंगी अभी स्टॉक मार्केट का they invest and कुछ भी नहीं पता होता है, and then let's say they invest 1,000 and they make a loss, और 100 बचते 200 बचते. It's because half knowledge के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो. जरूरी नहीं है जब इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ स्टॉक मार्केट है. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जहां पर आपको कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू हैव राइट पीपल अराउंड यू यू कैन इन्वेस्ट. सो आई थिंक फर्स्ट ये है जिसकी वजह से लोग हमेशा दूर रहते हैं इन्वेस्टिंग से. दे प्रिफर डूइंग एन एफडी और आरडी और एटलीस्ट मनी सिटिंग इन द कबर्ड. एंड अगर स्पेसिफिकली वुमेन का बोलूँ तो हमारा कैसा है, आपने लाइक यू हैव आल्सो सीन द सिचुएशन इन योर होम कि जब भी घर पे कुछ भी इमरजेंसी हो, लेट्स से मेडिकल का बहुत बड़ा बिल आ गया, हमारे मम्मी के पास कहीं ना कहीं से वो पैसे निकल के आ जाते हैं. वी डोंट नो कि उन्होंने कब सेव किए, कैसे किए, बट समवेयर डाउन द लाइन शी हैज द मनी. सो आई थिंक वुमेन ऑलवेज दे हैव बिकम, मतलब उनके अंदर वो इंस्टिंक्ट होता है कि दे नो हाउ टू मैनेज द मनी. सो घर में तो वो छुपा छुपा के रखते हैं. लाइक फॉर माय मॉम, मैं एग्जांपल दूं तो पापा एवरी मंथ लेट्स से 30-40,000 देते हैं. वो ऐसा बजट करती कि उसमें से आधे पैसे जमा हो जाते हैं, और ईयर डाउन में हमको पता चलता है कि लाख रुपए ऐसे ही पड़े कबर्ड में, नॉट रियलाइजिंग कि उन्होंने कहीं इन्वेस्ट ही नहीं किया. उनका ऐसे कि बचाते जाओ बचाते जाओ. सो इन्वेस्टिंग क्या है, आपका सेम है. इन्वेस्टिंग इज लाइक सेविंग. आप सेव कर रहे हो, बट आप ऐसे सेव कर रहे हो कि आपके पैसे को आप बोल रहे हो कि भाई तू बढ़, तू 500 है तो आज 500 मत रहे, तो कोई 500 का 550 हो, मे बी 5 साल में तू 1,000 हो. सो आई थिंक दैट्स इन्वेस्टिंग. एकदम सिंपल वे में बोलूँ किसी को समझे तो, कि आप आपके पैसे को बोल रहे हो कि भाई तू काम कर, मैं कमा के तो ला रहा हूँ बट तू काम कर. दैट्स लाइक एन इन्वेस्टिंग. ओके. एंड आई थिंक वी लैक पेशेंस ऑल्सो ना. बस हमको लगता है पैसे डाले और वो डबल हो जाना चाहिए फटाक से. हाँ वो है. आई थिंक मैं इसका एग्जांपल दूं तो एफडी भी, आप जब एफडी करते हो, आप एफडी क्या करते हो कि भाई इमरजेंसी कैश है, इमरजेंसी मनी है, समवेयर सिटिंग, सेफ पड़ा है, घर पे नहीं चोरी हो सकता है, लॉकर में है, और 5% 6% जो भी बैंक देती है, तो हम क्या करते हैं, एफडी करते हैं. बट हम जब एफडी भी करते हैं, वी डोंट एक्सपेक्ट कि कल के कल ही बैंक तुमको 5% दे. दिल मेक यू वेट 1 ईयर 2 ईयर्स, उसके बाद आपका रिटर्न होगा. एग्जाम सेम वे में आप म्यूचुअल फंड्स करो, स्टॉक मार्केट में डालो. अगर पेशेंस है तो सब कुछ होगा, नहीं है तो फिर आई थिंक बेटर वो पैसा कबर्ड में ही पड़ा. हाँ, बट आई फील कि एफडी हो गया या फिर आरडी हो गया, दीज आर दी सेफेस्ट ऑप्शन ना, एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड. वहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए दैट इज द रीजन आई इवन डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैंने एफडी में डाला, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं निकाल सकती हूँ, है ना. हम बीच में क्लोज कर सकते हैं एफडी को. लेकिन वो चीज़, अगर ये चीज़ सेम नहीं होती है फॉर म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, तो वहां पे ऐसा है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो आई फील कि ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है. लाइक है बेटर ऑप्शंस है, बेटर नहीं मैं बोलूंगी, सेफ ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग वैसे ही सीखते आए हैं. लाइक फॉर माय फादर, लाइक माय फादर इन लॉ, उनका तो बिजनेस है, बट फॉर माय फादर अभी भी मैं जब बोलती हूँ, ही इज लाइक कि भाई तू कर रही तो तू कर, यू डोंट टेल मी कि क्या करूं. ही इज स्टिल इन दैट एफडी एंड आरडी वाला गेम. बिकॉज हम्म. हम वैसे ही बड़े हैं, हमने क्या सीखा है. लाइक अब घर पे भी जब बोलोगे कि यार मुझे स्टॉक मार्केट में डालना है, द फर्स्ट रिएक्शन दैट कम्स इज कि डूब जाएंगे पैसे, पूरे डूब जाएंगे, इट्स नॉट गोना कम बैक, इट्स नॉट गोना मेक यू एनी रिटर्न. हम्म. बट म्यूचुअल फंड इज आई थिंक वन ऑफ द सेफेस्ट, एंड सेफेस्ट के साथ इट्स गिव यू अ गुड रिटर्न. आपका एफडी आरडी ऑन एन एवरेज इट गिव्स यू 5 to 6 रिटर्न. बट हम्म. म्यूचुअल फंड ऑन द सेम वे, मार्केट के कंडीशन में भी हम बोले जैसे कि वॉर होता है, बहुत सारे इकोनॉमिक कंडीशन होते हैं जहां इंडिया एज अ कंट्री इज नॉट परफॉर्मिंग. सो अगेन वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को थोड़ा डैम्पन करता है, बट स्टिल इट गिव्स यू अ गुड रिटर्न एज कम्पेयर टू योर एफडी और आरडी. लाइक मैं बोलूं एग्जांपल, मेरे फैमिली में देर आर सम पीपल हु स्टार्टेड एसआईपी 8 8 years बैक. ओके, 10,000 से चालू की थी, अभी 8 साल पहले किया तो आप रफली पकड़ो 10,000 से चालू की थी तो अराउंड 8 9 lakhs किया होगा. नाउ लाइक करंट के केस में their portfolio is sitting at 40 lakh. लाइक इतना तो आपको बैंक भी नहीं देगा, बट इट्स लाइक पेशेंस है, 8 साल से 8 साल से कर रहे हो और करते रहेंगे. सो आई थिंक म्यूचुअल फंड इज फॉर एवरीवन. अगर आप कॉलेज में भी हो यू कैन डू. एफडी के लिए यू हैव सर्टन, आपको सर्टन
कॉर्पस चाहिए उतना आप एफडी, आप लाइक 500 के जाके एफडी नहीं करोगे, आप थोड़ा जमा करोगे करोगे। बट म्यूचुअल फंड ऐसा है कि आप कॉलेज में हो, स्टाइपेंड आ रहा है, इंटर्नशिप आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, यू कैन इजिली, लाइक आपके ऐप से, ग्रो ऐप है, कितने सारे, जीरोधा है, कितने सारे ऐप है, just जा सकते हो और अपना एसआईपी चालू कर सकते Okay, as you mentioned SIP, so I would like you to explain SIP in the most simplest way to the people who are not aware of it. जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि SIP क्या होती है, you explain it to them, and also कितने से start कर सकते हैं इन्वेस्ट करना, मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए हमको इन्वेस्ट करने के लिए SIP में. म्यूचुअल फंड ऐसे समझो कि इफ मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और मुझे लगता है कि रिलायंस कंपनी बहुत आगे जाएगी, बट भी रिलायंस का एक शेयर 1300 का है, मेरे पास तो सिर्फ 1000 ही है, और हम्म. मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस जैसी बहुत बड़ी कंपनी जैसे कि टाटा, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये सब बढ़ेंगे, बट मेरे पास तो 1000 में सभी कंपनीज में तो नहीं कर सकती। तो म्यूचुअल फंड क्या है, एक ऐसी कंपनी है, वो तुम्हारे बदले वो कंपनीज में जाके इन्वेस्ट करती है। जैसे कि मुझसे 1000 रुपए लेगी और वो ये 1000 रुपए 100 100 100 रुपए करके सब कंपनीज में डाल देगी, इन्वेस्ट कर देगी। तो अब मेरा प्रॉफिट क्या है, ये मेरे पास तो सिर्फ बजट 1000 का ही था, तो मैंने क्या किया, मैंने तो मेरा 1000 इन्वेस्ट किया। वो कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ कि उसको मेरे जैसे और बहुत सारे शीतल मिल गए, तो 1000 1000 करके उसके पास 10 20 करोड़ आ गए। तो 10 20 करोड़ आगे क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है, अलग अलग टाइप के ऐसे बॉन्ड्स बनाती है, जैसे हमारे एफडी होते हैं, एफडी, फिर गोल्ड एफडी, फिर आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। वैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है, वो अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनाती है। पहला लार्ज कैप मतलब कि बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, और ये सेफ इन्वेस्टमेंट है कि मुझे पता है कि यार मेरा पैसा तो रिलायंस में जा रहा है, मेरा पैसा तो टाटा में जा रहा है, तो सेफ हैंड में है। मैंने क्या किया, मेरी मंथली 1000 रुपए इन्वेस्ट किए लार्ज कैप फंड में, और वो एवरी मंथ 1000 1000 रुपए डिडक्ट होते गए और यही कंपनीज में इन्वेस्ट होते गए। अभी मुझे प्रॉफिट कब होगा, जैसे जैसे ये कंपनी पैसे बढ़ाना कमाना चालू करेंगी और इनके प्रॉफिट्स होंगे, तो उसका परसेंटेज, जितना भी मेरा 1000 पे परसेंटेज बनता है, उतने परसेंट पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे अलग अलग होते हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि सिर्फ गोल्ड की कंपनीज ही बढ़ने वाली, जैसे कि इस साल देखा होगा गोल्ड बहुत बढ़ गया, तो हम्म. मुझे एग्जाम्पल लास्ट ईयर ऐसा लगा कि गोल्ड बहुत बढ़ने वाला है। तो फिर लेट्स से गोल्ड में करना है, तो गोल्ड की कंपनीज मुझे रिसर्च करने की जरूरत नहीं, म्यूचुअल फंड वाली है वो खुद कर लेंगे और वो इन्वेस्ट कर देंगे म्यूचुअल फंड वाले गोल्ड में। तो एग्जांपल, अगर मैं लास्ट दिसंबर में कोई म्यूचुअल फंड जो गोल्ड में स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करता है, गोल्ड रिलेटेड म्यूचुअल फंड में करती है, तो मेरा प्रॉफिट होता है। तो म्यूचुअल फंड ऐसा ही है कि आपको किसी कंपनी की पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पता है आपको रिस्क कितना लेना है, तो आप आपका एसआईपी चालू कर सकते हो। अब मैं हमेशा एसआईपी एसआईपी बोल रही हूँ, तो लगेगा एसआईपी क्या है। हम्म. एसआईपी मतलब कि हर मंथ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप हर मंथ एक सेम अमाउंट एक डेट पे देते हो और इन्वेस्ट करते हो। एसआईपी भी कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन है लमसम, जैसे एफडी करते हो ना, 50,000 इकट्ठे हुए तो एक साथ डाल दिए, वो कर सकते हो। बट आई थिंक एसआईपी बहुत इजी है अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या घर पे हाउसवाइफ हो, मंथली आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हो, या लेट्स से आप स्टूडेंट हो कि पॉकेट मनी आती है, तो एसआईपी इज लाइक वेरी रीजनेबल ऑप्शन कि आपको एक साथ ईएमआई जैसा, आपको एक साथ नहीं बल्क में पैसा देना, आप थोड़ा थोड़ा देके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो व्हाट आई अंडरस्टूड अबाउट म्यूचुअल फंड कि उसमें समझो चार पांच कंपनीज होंगी, मे बी सेक्टर माइट बी डिफरेंट, कि एक हो गया फूड, हो गया गोल्ड, हो गया, तो अगर मैं 500,000 इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उधर रिस्क कम होगा, क्योंकि मे बी वन कंपनी इज डूइंग गुड, अनदर इज डूइंग नॉट डूइंग दैट ग्रेट, तो वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी. इज लाइक, एम आई एक्सप्लेनिंग इट करेक्टली? तो हाँ, वहां पे रिस्क फैक्टर तो बैलेंस हो, कम हो जाता है. हाँ करेक्ट, रिस्क कम हो जाता है। और पर्सनली तुझे मतलब लाइक यू डोंट हैव टू सिट एंड देखना पड़ता है क्योंकि ये आज स्टॉक ऊपर है कि नीचे। देयर इज अ स्पेशल फंड अकाउंट मैनेजर हु लुक्स आफ्टर दिस। उसको लगता है कि यार ये 10 कंपनीज का मैंने एक म्यूचुअल फंड बनाया है, इसमें से दो 2 साल से परफॉर्म ही नहीं कर रही, वो हम्म. ट्राई करेगा अनदर कंपनी ढूंढ के खुद का म्यूचुअल फंड। सो इट्स लाइक कि तुझे लाइक यू एज अ पर्सन एट देन डोंट नीड टू डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग। वो रिस्क, वो रिवॉर्ड, सब एनालिसिस, एवरीथिंग दैट कंपनी डू। तो मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा एग्जैक्टली exactly? समझ, मुझे अभी मंथली स्टार्ट करना है, तो हु विल मैनेज दैट फॉर मी? किसी ऐप के थ्रू होगा, कैसे होगा? So there are various app. I think सबसे इजी बोलूँ तो इज ग्रो फॉर लाइक एवरीवन, सुपर एक्सेसिबल। आप जाके अपना केवाईसी कर सकते हो। केवाईसी इज लाइक पैन कार्ड, और ये अपने लाइक
नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन होता है, यू हैव टू अपडेट योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, योर नेम, बैंक डिटेल्स लिंक होते हैं, बिकॉज एवरी मंथ यू हैव टू लाइक मनी ट्रांसफर होता है, और यू नो SIP कर देते एवरी मंथ डिडक्ट होता है। सिंपल ग्रो ऐप से कर सकते हो। अभी कंपनीज बहुत सारे हैं, जैसे नमक की भी बहुत सारी कंपनीज होती है, वैसे म्यूचुअल फंड की भी बहुत सारी है, जैसे कि रिलायंस है, वो म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं, टाटा के हैं, आदित्य बिरला है, ऐसे बहुत सारे हैं, क्वांट है। सो आप कोई भी ट्रस्टवर्दी कंपनी, लाइक फॉर मी, अगर कोई देख रहा है तो आई ऑलवेज रिकमेंड टू गो विद क्वांट और निपॉन, बिकॉज उनका रिसर्च बहुत अच्छा है, एंड यू नो लाइक पास परफॉर्मेंस भी देखोगे, दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल। क्वांट के अंदर भी बहुत सारे आपके पास टाइप है, बट बिगिनर हो तो लार्ज कैप के साथ कर सकते हो, लार्ज कैप म्यूचुअल। ओके। अच्छा, नॉर्मली व्हेन वी थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग हमारे दिमाग में आता है दिस इज नॉट द राइट एज, थोड़ा बाद में करते हैं। तो टेल मी व्हाट इज द राइट एज एंड राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग? लाइक इफ यू आस्क मी आई टेल यस्टरडे, बिकॉज आई टू रिग्रेट कि मैंने इतना लेट स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का आई थिंक इट्स नॉट अ राइट टाइम और एज। आपके पास पैसे हैं तो जस्ट इन्वेस्ट इट, बिकॉज आज इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 साल बाद इट्स गोइंग टू गिव यू अ डबल रिटर्न। सो इट्स नेवर एन एज कि हम जमा कर करके रखेंगे। इट्स लाइक आपके पास 500 है, यू डू अ टॉप अप, यू डू एन SIP। आपके पास 500 है, आप जमा करके FD में डालते हो, आप स्टॉक ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट आई थिंक पैसे है तो इन्वेस्ट करो। आई थिंक बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि फर्स्ट सैलरी आए तो मैं कार लूंगा, मैं चेन लूंगा, मैं आईफोन लूंगा। बट आई थिंक जब फर्स्ट सैलरी आती है, मेक एन अटेम्प्ट क्या फर्स्ट अपना इन्वेस्टमेंट चालू करें। ओके, व्हाट आर द फ्यू मिथ्स अबाउट इन्वेस्टमेंट? That I think the first is like मैंने बोला भी है पहले, that you know if I invest today tomorrow I'll become rich, so that's like a biggest misconception. You need to have patience आप जब भी investment का game चालू करते हो। Second, whenever you are doing any investment, always if you are a newbie, always consult. It's no harm, getting information from other, getting to know things. Just because आपने कोई ग्रुप में देखा, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे ग्रुप होते हैं, वहां पर recommendations आते हैं, वो देखते हैं, they pick and they make a loss. So always go through an educational source. Third, if like I'll tell you कि if I want to invest, first you need to have an emergency fund. डायरेक्टली पैसे है तो इन्वेस्टमेंट करो। यू डोंट नो, मार्केट इज वेरी वोलेटाइल, एआई जॉब्स ले रहा है, यू डोंट नो द सिचुएशन, सो ऑलवेज हैव एन इमरजेंसी कैश टू सिट विथ यू। एंड फोर्थ, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन्वेस्टमेंट का सोचा सो ऑलवेज टेक एन हेल्थ इंश्योरेंस विथ यू। बिकॉज यू नो ऐसा होता है कि आप मतलब जिंदगी भर पैसा इतना कमा के रखते हो, एंड एक मेडिकल केस आता है, पूरा वाइप अप हो जाता है। तो आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस को सब ऐसे देखते हैं कि यार मतलब पैसे जा रहे हैं, मतलब कुछ हो तो नहीं रहा है, बीमार तो नहीं पड़ रही हो, बट तो भी जा रहे हैं। बट आई थिंक इफ यंग हो, फैमिली में हो, always take a health insurance. So I think it's not a myth, but I think it's fourth one was more like a recommendation कि health insurance और emergency fund लेके चलो। ओके। और इमरजेंसी फंड हमें कितने टाइम के लिए मेंटेन करना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए? आई थिंक सरप्लस में 3 to 6 months का कर सकते हो। इट्स मोर लाइक यू नो आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, ऐसा पड़ा है कि लाइक यू डोंट रिमेम्बर कि पैसा है। सो 3 months 6 months इज लाइक मैक्स आप लाइक कर सकते हैं। टेल मी वन financial हैबिट दैट वी शुड फॉलो एवरी सिंगल डे। आई थिंक ट्रैक डाउन योर एक्सपेंसेस, डू इट डेली, मंथली, वीकली, जैसे भी पॉसिबल है। बिकॉज यू समटाइम्स कैसा होता है, यू अर्न बट you spend more. So I think if you keep a track of how much you are earning, how much you are consuming, and how much you can save, so I think that's the best way. You can track your expenses, and at the same time you get to know कि आप कितना save या invest कर सकते Okay. Okay, Sheetal, thank you so much for joining. It was really a great conversation. I had really great insights into finance, investment. काफी कुछ चीजें पता चली जो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था. So thank you so much for that.